Class 9th. Today we will discuss chapter 2nd, physical features of India. In this chapter we will discuss about that a different physiographic division of India. Okay, now start from here. You have already learnt earlier that India is a vast country with a varied landform. What kind of terrain do you live in? If you live in the plains, you are familiar with the vast stretches of plain land. In contrast, if you live in hilly region, the rugged terrain with the mountains and valleys are common features. In fact, our country has practically all major physical features of earth: mountains, plains, deserts, plateaus and islands. जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विशाल देश है, जहाँ पे अलग अलग एरिया में लोग रहते हैं। अगर आप मैदानी एरिया में रहते हैं, प्लेन्स एरिया में रहते हैं, तो आप वहाँ के दूर तक विशाल फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। और यदि आप माउंटेन एरिया में रहते हैं तो वहाँ माउंटेन, ढलान, घाटियाँ, इससे आप परिचित होंगे। अच्छा, रियल में अगर आप ये जानते हैं कि अर्थ पे अलग अलग आकृतियाँ हैं, फिजिकल फीचर्स है, जिसमें से कि माउंटेन है, प्लेन्स है, डेजर्ट है, प्लेटू है, आइलैंड है। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल variations. Geologically, the peninsular plateau constitutes one of the ancient landmass on Earth's surface. It was supposed to be one of most stable land blocks. The Himalayas and northern plains are most recent landforms from the viewpoint of geology. Himalayan mountains form an unstable zone. The whole mountains systems of Himalaya represent a very youthful topography with high peaks, deep valley and fast flowing rivers. Northern plains are formed of alluvial deposits. The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rocks with gentle rising hills and wide valleys. भारत की जो भूमि है बहुत अधिक वैरायटी की है। यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेटू, ये जो है अर्थ का सबसे पुराना भाग है और इस भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। परंतु आज के डेट में जो ऐसा हुआ है कभी कि कुछ दिन पहले भूकंप ने भी इसे गलत साबित कर दिया है। और हिमालयन रीजन में नॉर्थर्न प्लेन ये जल्दी की बनी हुई आकृति है और जियोलॉजिस्ट के अनुसार से हिमालय एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी एक पर्वत श्रृंखला जो अभी जल्दी बनी हुई है, जिसमें कि पीक है और डीप वैलीज हैं, तेज बहने वाली नदियां हैं, ये सब जो बनी हैं, ये जो बनी है इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स से बनी है। और इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स के साथ साथ इसी में थोड़ा सा कम ऊंची पहाड़ियों वाली घाटियां भी बनी हैं। अब हम चलते हैं इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या है। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन। इंडिया जो है ये 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन से बना हुआ है। तो फर्स्ट है हिमालयन माउंटेन, इंडिया में हिमालयन माउंटेन्स है। सेकंड है द नॉर्थर्न प्लेन्स। थर्ड है पेनिनसुलर प्लेटू और फोर्थ है इंडियन डेजर्ट। फिफ्थ है कोस्टल प्लेन्स और 6 है आइलैंड। तो अब चलते हैं फर्स्ट पे, हिमालयन माउंटेन्स पे। द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली old mountains stretch over the northern borders of India. These mountains range run in the west east direction from the Indus to Brahmaputra.
The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of world. They form an arc which covers a distance of about 2,400 km. Their width varies from 400 km in Kashmir to 150 km in Arunachal Pradesh. The altitudinal variation are greater in the eastern half than those in the western half. The Himalaya consists of three parallel ranges in its longitudinal extent. A number of valleys lies between these ranges. The northernmost range is known as Great or Inner Himalayas or Himadri. It is the most continuous range, consists of the loftiest peak with an average height of 6,000 meter. It contains all prominent Himalayan peaks. हिमालय जो पर्वत है भारत की ये उत्तरी सीमा पर विस्तृत फैला हुआ एक भाग है और इसके ईस्ट और वेस्ट इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक फैला है। ईस्ट से वेस्ट तक ब्रह्मपुत्रा तक फैला हुआ है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम्य अवरोधों से घिरी हुई है और ये जो है 2400 किलोमीटर की लंबाई से फैले हुए एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, अरुणाचल में 1050 किलोमीटर और वेस्ट के एरिया में ये जो है थोड़ा ऊंचाई इसकी सामान्य है और इन श्रृंखलाओं के बीच में बहुत सारी घाटियां पाई जाती हैं और इसके सबसे उत्तरी भाग की एक श्रृंखला है जिसको कि हिमाद्री कहते हैं। ये सबसे अधिक कॉन्टिन्यूअस श्रृंखला है जिसमें कि 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे पर्वत हैं। इसमें हिमालय के कुछ पर्वत निम्न हैं। तो अब हम चलते हैं कुछ निम्न पर्वतों पर जिस पे कि हम डिस्कस करेंगे। अब हम इन पर्वतों पे चलते हैं। तो कौन कौन से 6000 के ऊपर के पर्वत हैं? तो सबसे हाईएस्ट पीक हिमालय की जो है ये है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में पाई जाती है, 8848 मीटर की है। फिर है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट तो ये नेपाल में है, कंचनजंगा इंडिया में है और इसकी जो हाइट है मीटर में 8598। फिर है मकालू नेपाल में है 8441 मीटर। फिर है धौलागिरी नेपाल में 8172 मीटर। फिर है नंगा पर्वत इंडिया में है 8126 मीटर। फिर है अन्नपूर्णा नेपाल में है 8078 मीटर। फिर है नंदा देवी इंडिया में है 7817 मीटर। कॉमेट इंडिया में है 7756 मीटर। फिर है नमचा बरवा इंडिया में है 7756 मीटर। फिर है गोरिया मानधाता ये नेपाल में है 7728 मीटर पे है। द फोल्ड्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर asymmetrical in nature. The core of this part of Himalaya is composed of granite. It is perennial snowbound and a number of glaciers descend from this range. जो महान हिमालय है ये जो है ग्रेनाइट से बना हुआ है। ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है और इसमें पूरे साल भर ग्लेशियर में ये बना रहता है। उसके बाद फिर इंडिया का ये मैप आप देख लीजिए। मैप से इंडिया की पोजीशन, इंडिया बना कैसे है, इंडिया की सभी जो पोजीशनिंग है वो बताई गई है और इंडिया की जो सभी पोजीशनिंग बताई गई है, इस पोजीशनिंग को अगर आप देखना चाहें तो इससे देख सकते हैं। ये नंबर वाइज बताए गए हैं। नंबर वाइज आप देख सकते हैं। नंबर वाइज नंबर 1 पे ऊपर दिया गया है, इसकी रेंज बताई गई है और ये नंबर 1 का जो है काराकोरम रेंज है। नंबर 2 पे नॉर्थन प्लेन है। नंबर 3 पर डेक्कन प्लेटू है। नंबर 5 पे ईस्टर्न घाट है और दोनों तरफ नंबर 5 पे 2 ईस्टर्न घाट है और नंबर 6 पर आपका लक्षद्वीप का एरिया है
ये इंडिया की पोजीशनिंग है और इससे आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एरिया पर। नेक्स्ट एरिया पर आते हैं और नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पर